Good morning students. This is the second video for chapter vector. आज हम पढ़ेंगे multiplication of a vector with a number, with a scalar and addition of vectors. Multiplication of a number with vector. अगर किसी नंबर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करना है then what will happen? n into a vector is equal to na vector. For example, 5 into 5 meter per second and answer is 25 meter per second. If you multiply a number with vector, then resultant is also a vector quantity. तो resultant क्या आएगा? Vector quantity आएगा. Whose magnitude is n times the magnitude of given vector. यहाँ 5 into 5 है तो यहाँ n into a हो जाएगा. तो first point is if you multiply a number with a vector, then resultant is also a vector quantity and whose magnitude is product of magnitude of number and magnitude of given vector. Second point, unit of resultant vector is same as that of unit of given vector. जो यूनिट गिवन वेक्टर की है मीटर पर सेकेंड वही यूनिट रिजल्टेंट वेक्टर की है मीटर पर सेकेंड. एंड नेक्स्ट पॉइंट इज इफ n is positive, if number is positive then n into a vector gives na vector. If n is positive then na vector, resultant vector and given vector are in same direction. This is suppose a vector and this is na vector. Both are in same direction. If n is negative, second point is if n is negative, अगर negative है तो minus n into a vector that will give minus na vector. So here a vector has positive sign and na vector has negative sign, or negative sign indicates that directions are opposite. So suppose this is a vector and this is the na vector. Negative sign means directions are opposite. Same हम करेंगे multiplication of a scalar and vector. If you multiply scalar and vector quantities, then what will happen? What will be the result? Multiplication of a scalar with vector quantity. S into a vector, answer is SA vector. Example is 5 kilogram multiplied by 5 meter per second, answer is 25 kg meter per second. If you multiply a scalar and vector quantity, then resultant is also a vector quantity whose magnitude is S times the magnitude of given vector. तो मतलब यहाँ 5 और यहाँ 5 into 5 आंसर will be 25. तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एंड स्केलर. इनका स्केलर का और मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का प्रोडक्ट करो, दैट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन रिजल्टेंट वेक्टर. सेकेंड पॉइंट इज यूनिट इज सेम. यूनिट जो है दैट विल बी सेम. Unit of resultant vector is the product of unit of scalar and unit of vector. जो यूनिट सेम रहती थी वो नंबर के केस में सेम रहती थी, लेकिन अगर मैं स्केलर और वेक्टर को मल्टीप्लाई करूंगा तो रिजल्टेंट वेक्टर की जो यूनिट होगी इट इज द प्रोडक्ट ऑफ यूनिट ऑफ स्केलर एंड यूनिट ऑफ वेक्टर. तो यहां से कंक्लूजन ये निकला, इफ यू डिवाइड scalar and vector, if you multiply scalar and vector, then resultant is also a vector quantity. For example, मैंने बताया था displacement. मैंने बताया था displacement जो है it is a vector quantity. It has direction. अब मैं बता रहा हूँ velocity. The formula for velocity is displacement upon time.
डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, टाइम इज ए स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर को स्केलर से डिवाइड करो तो रिजल्टेंट इज आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी, दैट इज वाई वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। वेलोसिटी इज द वेक्टर क्वांटिटी, टाइम इज द स्केलर क्वांटिटी, हैंस एक्सेलरेशन इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स, फोर्स है मास इंटू एक्सेलरेशन, मास स्केलर क्वांटिटी, एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर इज द वेक्टर क्वांटिटी, दैट इज वाई वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स आर वेक्टर क्वांटिटीज। नेक्स्ट पॉइंट इज angle between two vectors. The most important topic is how can you find the angle between two vectors. Angle between two vectors. अगर मुझे दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना है तो टेल से टेल मिला, बस याद रखो, टेल से टेल मिला, टेल से टेल, और दूसरा हो सकता है हेड से हेड, हेड से हेड मिलाओ या टेल से टेल मिलाओ। फॉर एग्जाम्पल दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर, टेल से टेल मिली हुई है ऑलरेडी। सपोज दिस एंगल इज 90 डिग्री, देन एंगल बिटवीन ए एंड बी विल बी 90 डिग्री। तो एंगल ए और बी में क्या है? 90 डिग्री है। एंगल टेल से टेल मिलने के बाद ये भी एंगल हो सकता है, बट दिस एंगल इज 270 डिग्री। तो हमारा जो एंगल होता है बिटवीन टू वेक्टर्स वो होता है लेस देन 180, 0 और 180 के बीच में जो एंगल होगा दैट वी विल टेक। ये एंगल है 90 डिग्री एंड दिस एंगल इज 270 डिग्री, तो हम लोग 270 नहीं लेंगे, हम लोग 90 डिग्री लेंगे, क्योंकि एंगल बिटवीन वेक्टर्स होगा 0 और 180 के बीच में। तो याद रखो टेल से टेल मिलाना है। सपोज ये वेक्टर है ए and this vector is B and this angle is suppose 40 degree, then what is the angle between A and B? A वेक्टर और B वेक्टर में एंगल 40 डिग्री नहीं है, क्योंकि यहाँ टेल और हेड मिला हुआ है। हमारा क्या है? टेल से टेल मिलाना है, यानी कि वेक्टर होना चाहिए को इनिशियल। को इनिशियल का मतलब जिनके इनिशियल पॉइंट सेम हो। तो सीधा याद रखो टेल से टेल मिलाना है या हेड से हेड मिलाना है। अब टेल से टेल मिलाने के लिए क्या करूँगा? पैरेलल शिफ्ट ऑफ वेक्टर्स। इस वेक्टर को मैं यहाँ नीचे शिफ्ट कर देता हूँ, बिल्कुल करेक्ट है, कर सकते हैं हम शिफ्ट। तो टोटल एंगल कितना हो गया? ये 180, ये एंगल कितना बच गया? थीटा, दैट इज कॉल्ड 140। देन एंगल बिटवीन ए एंड बी विल बी 140। ऐसे कर सकता हूँ, या फिर मैं ए को भी शिफ्ट कर सकता हूँ। ए टेल यहाँ पे है, बी की टेल यहाँ है, ये लो मैंने ए को शिफ्ट कर दिया। दिस इज ए वेक्टर, तो दिस एंगल इज थीटा 140 डिग्री। तो टेल से टेल मिलाओ या हेड से हेड मिलाओ। नेक्स्ट एग्जांपल इज सपोज दिस इज अ वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, दिस एंगल इज 30 डिग्री। व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी? तो सिंपल सा रूल है, टेल से टेल मिला। ये टेल और ये हेड, हमें तो टेल से टेल मिलानी है। या तो मैं ए को आगे शिफ्ट कर दूं या बी को इधर शिफ्ट कर दूं। तो इजी क्या है? ए को आगे शिफ्ट कर दो, दिस इज ए, तो ये जो एंगल होगा दिस एंगल इज 150 डिग्री। तो एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज 150 डिग्री, नॉट 30 डिग्री। अगर ऐसे वेक्टर आ जाए, दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर, एंगल इज 60 डिग्री, तो यहाँ हेड से हेड मिला हुआ है, नो नीड। तो एंगल क्या होगा? 60 डिग्री। हेड से हेड दिख रहा है तो 60 डिग्री है। अगर मैं इनकी टेल से टेल मिलाना चाहूँ देन वो कैसे कर सकता हूँ? बी को शिफ्ट करो आगे, दिस इज बी, ए को शिफ्ट करो आगे, दिस इज ए। तो जहाँ हेड से हेड मिलेगा वहाँ टेल से टेल भी ज्वाइन होगी, और ये एंगल भी क्या होगा? वर्टिकल अपोजिट एंगल, दिस एंगल इज आल्सो कॉल्ड 60 डिग्री। तो सिंपल सा रूल है फॉर फाइंडिंग एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, टेल से टेल मिला या हेड से हेड मिला। नेक्स्ट इज
addition of vectors. For adding different vectors, addition of vectors, addition of vectors. इसके लिए रूल है हेड टू टेल, हेड और टेल ज्वाइन करना है, मतलब ज्वाइन head of first vector to tail of second vector. Join head of second vector to tail of third vector and so on. Then resultant is given by joining tail of first vector and head of last vector. ये जनरल रूल है फॉर एडिंग लार्ज नंबर ऑफ वेक्टर्स. एक सिंपल सा न्यूमेरिकल करते हैं डिस्प्लेसमेंट में. सपोज डायरेक्शंस जब भी आपको देखनी हो तो आप इंडिया का मैप याद रखो, ऊपर नॉर्थ, इधर साउथ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट. सपोज ए पर्सन इज मूविंग 4 मीटर अलोंग ईस्ट, ए पर्सन इज मूविंग 4 मीटर अलोंग ईस्ट. ये ईस्ट की साइड 4 मीटर गया. देन इट विल ट्रेवल 5 मीटर या 4 मीटर और 3 मीटर जो भी है, इट विल ट्रेवल 3 मीटर अलोंग नॉर्थ. ये बी पे पहुंच गया 3 मीटर. तो व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट? तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, ओ और बी को ज्वाइन कर दो तो क्या बन गया, ये नेट डिस्प्लेसमेंट. यही तो है एडिशन ऑफ वेक्टर्स. देख लो क्या किया हमने, head of first to the tail of second. The resultant of these two is obtained by joining tail of first and head of last. This is the resultant vector. तो नेट डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए टेल फर्स्ट की और हेड लास्ट का हमने ज्वाइन किया, तो ये जनरल फार्मूला बन गया आपका. सपोज वी हैव लार्ज नंबर ऑफ वेक्टर्स, बहुत सारे वेक्टर्स हैं, उनको ऐड करना है. देखो सपोज ये मेरे पास है ए, ये मेरे पास है बी, ये मेरे पास सी, ये मेरे पास डी. दीज आर नॉन कोलिनियर वेक्टर्स, अलग अलग डायरेक्शंस में. अगर मुझे इनको ऐड करना है तो इसके लिए मैं एक तो रूल याद करूंगा पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स, कि मैं वेक्टर को कहीं पे भी शिफ्ट कर सकता हूं. और सेकंड मुझे हेड टेल हेड टेल हेड टेल ज्वाइन करना है. फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूं OP1 इक्वल टू ए. ये जो OP1 है वो मैंने ए के इक्वल ले लिया. फिर मैंने बनाया P1 P2 इक्वल टू बी. फिर मैंने बनाया C P2 P3 इक्वल एंड पैरेलल टू C. फिर मैंने बनाया P3 P4 इक्वल एंड पैरेलल टू D. तो क्या किया मैंने, हेड ऑफ फर्स्ट टू द टेल ऑफ सेकंड, हेड टेल एंड सो ऑन. तो इन सब का रिजल्टेंट कैसे मिला, बाय ज्वाइनिंग टेल ऑफ फर्स्ट एंड हेड ऑफ लास्ट. दिस इज कॉल्ड रिजल्टेंट वेक्टर. तो आर वेक्टर की वैल्यू क्या होगी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी. तो एक पॉइंट आता है व्हाट इज रिजल्टेंट वेक्टर. तो रिजल्टेंट वेक्टर इज ए सिंगल वेक्टर हुज इफेक्ट इज सेम एज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ इंडिविजुअल वेक्टर्स. जो ए बी सी डी का कंबाइंड इफेक्ट है वही रिजल्टेंट वेक्टर है. फॉर एग्जांपल यू हैव 20 नोट्स ऑफ 100 रुपीज़. तो 20 नोट्स 100 रुपीज़ का मार्केट में वही काम करेंगे जो सिंगल नोट 2000 रुपीज़ का करेगा. तो ये जो 2000 रुपये का नोट है, इट इज़ द रिजल्टेंट ऑफ 20 100 रुपीज़ नोट. तो रिजल्टेंट वेक्टर इज ए सिंगल वेक्टर हुज इफेक्ट इज सेम एज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ इंडिविजुअल वेक्टर्स. तो ये हो गया आपका एडिशन ऑफ वेक्टर्स जनरल फार्मूला. अब हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं
एडिशन ऑफ वेक्टर्स, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इस वीडियो को आप एक दो बार देखो, एक दो बार देखने के बाद आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। फिर आप इसके नोट्स बनाओ, याद करो इनको और फिर आप नेक्स्ट वीडियो देखना।